राष्ट्रपति भवन में ब्रह्मा कुमारीज नेपाल द्वारा कल्चरल इवेंट का भव्य आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ब्रह्मा कुमारीज में काठमांडू जोन की प्रभारी बीके राज दीदी, सह प्रभारी बीके किरण दीदी समेत कई बीके सदस्यों और भारत सरकार के कई अधिकारियों की उपस्थिति में डिवाइन कल्चरल ग्रुप द्वारा नेपाली और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए कई मनमोहक डांस प्रस्तुतियां दी। शिवाय नमः नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः नमः शिवाय। जय भोले जय भोले जय भोले। कल्चरल इवेंट के अंत में राष्ट्रपति जी ने डिवाइन कल्चरल ग्रुप की प्रशंसा करते हुए बीके सदस्यों के साथ फोटो सेशन कराया। आध्यात्मिकता हमें निर्भयता, सत्यता और प्रामाणिकता से बात रखने का बल प्रदान करता है और शायद वर्तमान में मीडिया को आध्यात्मिक बल की आवश्यकता भी है। इसी संदेश को देने के लिए गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में मीडिया कर्मियों के लिए संगोष्ठी का आयोजन हुआ। ओआरसी के आध्यात्मिक वातावरण में आयोजित इस सम्मेलन में चर्चा का विषय रहा व्यवसायिक जीवन में उन्नति के लिए डिवाइन कोड, जिसमें प्रमुख तौर पर भारतीय विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ राजनयिक, IFS अधिकारी राजशेखर, भारत सरकार के पूर्व मीडिया सलाहकार S नरेंद्र, चेन्नई से प्राइम पॉइंट चैनल के संस्थापक श्रीनिवासन, इंडिया टुडे इंस्टीट्यूट के डीन एवं डायरेक्टर ध्रुव ज्योति, भारतीय जनसंपर्क परिषद के चीफ मेंटर MB जयराम शामिल हुए और ORC के निदेशिका बीके आशा दीदी, मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सरला दीदी, बीके शांतनु भाई के दिव्य उपस्थिति में सम्मेलन का आगाज किया। Dr. Kalam was telling me, you can't validate everything through science. Maximum 3%, 4% maybe we can validate. So many things are beyond the purview of science itself. Probably we can try to explore, like space. You can't create a one drop of water. With all the scientific advancement and technological advancements, you can't create one drop of water. Maybe H2O, laboratory, one drop of water, if you want to create, how much it may cost. But we have a plenty of water. We may make any amount of material progress without this spiritual harmony, inner peace, all that will not mean anything. Japanese very proudly call themselves Wa Koku. Wa means harmony. This harmony is important, and organizations like Brahma Kumaris, the work that you are doing is most significant. I salute. We are living in a technology era. We cannot bypass it. And rightfully it is mentioned when former Prime Minister Rajiv Gandhi's time, Narendra Sahab could recollect the memory. I met him even that point of time when Sam Pitroda was emphasizing that technology is the only answer to bridge the gap between village and urban and people who are at the bottom of pyramid to the top level decision maker. What is media literacy? Sifting fake news from facts. I don't know where
AI will go. But the danger of facts getting submerged by fake news is real. It can be misused by anti-social elements, by militants, by anti-national elements, and a variety of others who want to engage in crime. My only plea to all the communicators is do something about making even your own students, while giving media education, make them media literate. You have no power to control what's going on around you, but you have all the power to control what is going on within you. जनसंपर्क के बारे में बोलते हुए आशा दीदी ने कहा कि हमें खुले मन से चीजों को समझने की जरूरत है। उनके अलावा बीके सरला दीदी और बीके शांतनु भाई ने भी सम्मेलन के विषय पर प्रकाश डाला। And spiritual strength means वह शक्ति, वो विल जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो बात को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसके लिए आपके अंदर विल हो, उसके अंदर आपके लिए ताकत हो। ताकत पेन में है, लेकिन वो पेन ने क्या काम करना है, वो ताकत आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी स्पिरिचुअलिटी से आती है। Our chief of Brahma Kumaris used to address the then PRO of Brahma Kumaris, now chief of media, Brother Karunaji. She didn't know to utter PRO, she used to call him Pyaro. So, yeah, so it rhymes very well with all of you. So, all the Pyaros के लिए मैं अभिनंदन करती हूँ। जितने टेक्नोलॉजी आया है, चाहे कम्युनिकेशन क्षेत्र में हो, चाहे स्पेस साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे डिफेंस क्षेत्र में हो, चाहे हमारे साइंटिफिक इन्वेंशन के ऊपर हो, या हमारे एग्रीकल्चर क्षेत्र में हो, चाहे हमारा साइकोलॉजी सोशल साइंस क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में, सब में, चाहे मैथमेटिक्स के क्षेत्र में हो, सब में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का जो 1950 से शुरू हुई थी और 1980 दशक के बाद ये ज़्यादा फैलता फूलता रहा, कंप्यूटर साइंस के हिसाब से आगे बढ़ता रहा। लेकिन उसमें एक पहलू है कि इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, जिसके बारे में भी उन्होंने सुनाया। चाहे हमारे स्पेस साइंस के लिए हम काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो एटॉमिक वार है, जो मिसाइल से हमारे पास स्टोर है, उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। मशीन कभी भी फेल हो सकता है और उसको ठीक करना सहज भी नहीं है। सम्मेलन में राजयोग शिक्षिका बीके ख्याति बहन ने संस्था के परिचय के साथ साथ ओम शांति रिट्रीट सेंटर की जानकारी दी, तो वहीं बीके सुनैना बहन ने सभी अतिथियों को राजयोग का अभ्यास कराया। इसके अलावा नेपाल के कलाकारों ने अपने डांस परफॉर्मेंस से सबका मनोरंजन किया। वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अरुणा दीदी को ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट इन लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया गया। विगत 30 वर्षों से समाज के विभिन्न वर्गों में आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन का प्रचार प्रसार करने के लिए बीके अरुणा दीदी को इस सम्मान के लिए चुना गया है। उन्हें ये उपाधि इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के सेवन द्वारा ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी वडोदरा के दीक्षांत समारोह में प्रदान की गई। इस मौके पर बीके अरुणा दीदी के साथ मंगलवाड़ी सब जोन प्रभारी बीके राज दीदी भी उपस्थित रहे। अरुणा दीदी की इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए संस्था के मुख्यालय में संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, एडिशनल चीफ बीके जयंती दीदी, बीके मोहिनी दीदी, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई समेत कई पदाधिकारियों ने भी उन्हें सम्मानित किया। आज फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।